So I'm repeating it again. Maths 4024 is our code. Today's topic is solving fractional equations. This is from exercise 1D, page 24, D3, 7th edition. And we will be solving question number 1, part A, B, and F. And we'll be solving question number 2, part B, C, and D. So we have 6 questions in which in today's class. And we'll be solving those 6 questions. I am writing the first part on the board, that is question number 1, part A. We have to do question number 1, part A. 8 upon x. 2, yes. सर रेफरेंस आपने मिटा दिया रेफरेंस? जी मैंने रेफरेंस मिटा दिया। रेफरेंस मैंने मिटा दिया। साथ साथ मैंने रिकॉर्ड कर दिया ना वो वीडियो, तो आप उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो रेफरेंस नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? दिस इज योर क्वेश्चन। एक मिनट, तुम लोग ये क्वेश्चन कॉपी करो, मैं आ रहा हूं। Okay, so we are back again. This is our question, and this is basically question number 1, part A. The question is 8 upon x is equals to 2x plus 1. We call this fractional equation. हमने इसको बोला fractional equation. कोई बता सकता है कि मैंने इसको fractional equation क्यों बोला है? Why I am calling this as fractional equation? मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको fractional equation? Equation क्यों? क्योंकि there is an equal to sign, ठीक है? और fraction क्यों कह रहा हूँ? Why am calling this fraction? इसको मैं fraction क्यों कह रहा हूं? Because there is a fraction involved. या fraction involved है, ठीक है? This is a fraction. So any equation in which a fraction involved, it is called a fractional equation. बात समझ में आई है? ये fractional equation है. इसको solve करना है, ठीक है? And solve means I have to find the value of the variable. मुझे variable की value चाहिए. So for that, what will I do? I will just simplify it. Simplify करने के लिए I know there is nothing in the denominator, so there will be 1, ठीक है? And there is an equals to sign, so what will I do? I will go for cross multiplication. मैंने cross multiplication करनी है in order to simplify it, ठीक है? simplification करने के बाद मैं देखता हूँ ये क्या बनती है। हो सकता है ये quadratic बन जाए, तो quadratic को solve करना मुझे आता है, किस तरह इसको solve करना है। तो for that 8 multiplied by 1 and this x will be multiplied with 2x plus 1. 8 times 1 is 8, and x multiplied by 2x will be 2x square, and x multiplied by 1 will be x. I will shift this 8 on the other side. It will become 8 2x square plus x minus 8 equals to 0, which is my quadratic equation. ये quadratic equation बन गई, ठीक है? And I have to solve it. मुझे इसको solve करना है. तो in order to solve a quadratic equation, मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर मेथड इज द, सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है? मैं कौन सा मेथड यूज करूं उसको सॉल्व करने के लिए? कोई नाम बता सकता है? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जबरदस्त, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड इज द बेस्ट, वो हर जगह अप्लाई हो जाता है। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करने वाला हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? उस फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन डिवाइडेड बाय 2a। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आई शुड नो द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की क्या वैल्यू है? यहाँ a की क्या वैल्यू है? a जो है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं। a जो है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं। तो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 2।
ठीक है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। b के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 1 1, जबरदस्त। तो द वैल्यू ऑफ b इज 1, गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c कहते हैं लास्ट वाले नंबर को विद द साइन, ये सारे नंबर्स अपने साइन के साथ आते हैं, -8, गुड, शाबाश, -8 good. So this is the value of C. I know the value of A, B and C. What would I do? I will just put the values. Direct formula में values put करके I will get the answer. X is equals to, I'm इस formula को use कर रहा हूँ. X is equals to minus B. Minus formula का है minus, and then the value of B is 1. So I will write 1 plus minus, and then B square. B square is 1 square. I will write 1 and then square. Negative sign is of the formula, ये formula का है negative sign. Then 4 multiply by a. What is the value of a? The value of a is 2. So I will write 2 in bracket. 2. And what is the value of c? And -8. -8. And then whole divided by 2a. A की value क्या है? What is the value of a? 2. So I will write 2 over here. 2. -1 plus minus. What is 1 square? 1 square means 1 multiplied by 1. 1 multiplied by 1 is 1. अब यहां देखो जरा, there are two negative signs, दो negative signs हैं. The first one is this and the other one is this. There are two negative signs and they are being multiplied. ये multiply हो रहे हैं, दो negative sign multiply हो रहे हैं. Minus multiply by minus equals to -61 या फिर +61 आएगा. प्लस कर देते हैं, पहले साइन को प्लस कर देते हैं. देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 and 8 multiplied by 8 is 64. 64 And then whole divided by 4. 2 times 2 is 4. अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लो. -1 plus minus square root of 65 and then divided by 4. And then अब मेरे पास दो possibilities हैं. The first one is with a positive, x is equals to -1 plus root of 65 whole divided by 4. This is the first possibility. मैंने पॉजिटिव रूट 65 के साथ लिखा है. अब मैं नेगेटिव रूट 65 के साथ लिखने वाला हूं. -1 minus root of 65 and then whole divided by 4. Use your calculators and tell me your answer. जल्दी से मुझे x के दो आंसर्स बता दो. What are the two answers? जल्दी से मुझे आंसर्स बता दीजिए. सर 2.265 आंसर आ रहा है इसका प्लस वाले इक्वेशन का. इसको राउंड ऑफ करके 2.7 लिखने को मैल. पता नहीं सर, आप देखिए एक मिनट में दोबारा कर. 2.70 बिल्कुल सही आंसर है और दूसरा वाला -3.70 आ रहा है. एक मिनट सर, मैं देख के बताता हूँ आपको. चेक कर लो. सॉल्व करोगे तो चीज समझ में आएगी, सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें ये चीज मुश्किल है. कल हमने जो स्कूल आए थे एफ वाले, हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सलीना को समझ में आ रहा है? सलीना आंसर्स बताओ जल्दी से, क्या आ रहे हैं आंसर्स? अनस, हमाद, बाजिफ. बाजिफ ने काम किया हुआ है पहले. बाजिफ ये किया सेकंड वाले का भी -2.26 आ रहा है, 265 आ रहा है. नहीं. जब तुम ये देखो, ये नेगेटिव है. मुझे बताओ कि रूट ऑफ 65 कितना आ रहा है? रूट ऑफ 65 क्या आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 65 कितना आ रहा है? 8.06. 8.06 ना. अब ये माइनस है दोनों, तो इसका मतलब है कि तुम इसमें 1 ऐड कर दोगे. तो -9.06 को 2 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करो. कितना आ रहा है कुमैल? सर 2.265 ही आ रहा है. और ये इससे पहले वाला चेक करो.
वो 77 आ रहा होगा इसका आंसर। इसको चेक करो, ये 1.77 आ रहा होगा। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1.77 एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2.7। चेक कर लो। हानि आप बताओ, यशवा चेक करो कैलकुलेटर से आंसर यही आ रहे हैं। रजा आंसर बताओ यही आ रहे हैं। अब्दुल्ला आप भी बताओ जल्दी से। आंसर यही आ रहे हैं। सर एक दफा एक्सप्लेन करें आपका आंसर किस तरह आया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हो? ये जो आंसर है ये बताऊं? सर ये जो फाइनल आपका आंसर किस तरह है। मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये कैलकुलेटर से यूज किया है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, इधर देखो। ये क्लियर कर लेते हैं ताकि ये चीज, ये बोर्ड का पार्ट नजर आ रहा है ना सबको? क्लियर है ये? देखो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं हानि। यहाँ मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव रूट 65, और इस पॉजिटिव रूट 65 को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8.06। ऐसे ही है कुमेल? 8.06 आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई। एंड द नेक्स्ट वन इज -1 माइनस 8.06 होल डिवाइडेड बाय 4। ये स्टेप समझ में आया हानि को? यस सर। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर से देखो 8.06 माइनस सर 1 कितना हो जाएगा? सर एक आ रहा है 1.765 प्लस वाले का। 1.765। ठीक है, देखो हानि ये मैंने किया है। कैलकुलेटर से जब आप -1 प्लस 8.06 करोगे तो आंसर आएगा 7.06, और 7.06 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1.765। और दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा माइनस कितना आ रहा है कुमेल? -2.70। जब आप -1 और -8.06 करोगे यू विल गेट -9.06। -9.06 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो यू विल सर गेट -2.265 आ रहा है सेकंड वाले का। -2.265। यही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एक आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1.765 एंड द अदर वन इज -2.265। क्लियर है? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पार्ट करो, पार्ट बी करो जल्दी से। हानि क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ सकता हूं? सलीना, अनस, यस सर। हो गया ये? हमाद, बाजिफ, अब्दुल्ला, रजा? हो गया सर, हो ठीक है। गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी है हमारे पास। पार्ट बी इज 3x - 1। थ्री एक्स माइनस वन equals to 7 upon x plus 4. This is our question. Again, nothing is written over here, so we will write 1. And now we will cross multiply. 3x minus 1 in bracket will be multiplied with x plus 4. And this 7 will be multiplied with 1. This is two brackets, and we know how to multiply two brackets. We have to split one. This will be 3x, and then again the whole bracket will be as it is. Then minus 1 whole bracket will be x plus 4. And then 7 times 1 is 7. And now I will multiply 3x multiplied by x will be 3x square. 3x multiplied with plus 4 will be 12x. Minus 1 will be multiplied with minus
minus x, and then this will be minus 4. This is positive 7. This positive 7 will move on this side and it will become minus 7 equals to 0. And on simplification, my quadratic equation will be 3x square plus 11x minus 11 equals to 0. The value of a will be 3, the value of b will be 11, and the value of c will be minus 11. Apply the quadratic formula, jaldi se quadratic formula apply karo. What is the quadratic formula? Quadratic formula क्या है हमारे पास? X is equals to minus b plus minus square root of 4b square minus 4ac and then whole divided by 2a. We have x is equals to, now I will just put the values. A, B, C की values मेरे पास आ गई हैं. I have a equals to 3, b is equals to 11 and c is equals to minus 11. अब मैं values put कर रहा हूँ. Minus b means I have to write a minus. Formula का एक minus मेरे पास है and then minus 11 plus minus 11 square minus 4 times, what is the value of a? The value of a is 3 and the value of c is minus 11. So I will write both the values in the bracket and then again 2 times 3. Solving it further, minus 11 plus minus 11 square will be 121. This negative and this negative. There are two negatives and they are being multiplied, so it will be positive. 4 times 3 is 12 and 12 multiplied by 11 will be 132. And whole divided by 6. 2 times 3 is 6. Minus 11 plus minus square root of 253 divided by 6. Now again two possibilities, one with positive 253 and the other one with negative root 253. Answers बताओ मुझे जल्दी से शाबाश.
आंसर्स क्या आ रहे हैं? आंसर्स बता दो मुझे जल्दी से। सॉल्व किया किसी ने आगे? माइक्रोफोन खोल लो, आंसर्स बता दो मुझे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर 0.81 एंड -4.48। जबरदस्त, वेरी गुड, शाबाश, सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। तो फर्स्ट वन, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो मैं इनको दो पहले कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा फर्स्ट वन इज -11 प्लस 253 एंड देन 6। कैलकुलेटर यूज करने के बाद यू विल गेट एन आंसर ऑफ x विल बी इक्वल्स टू पॉइंट, इट विल बी 0.818। ऐसे ही है हनी? 0.818 आ रहा है। यस You सर। will get an answer of 0.818, and the other possibility is, the next possibility is x is equals to -11, then there will be a 253 and then whole divided by 6। हानि इसका आंसर क्या आ रहा है? x is equals to, -4.48। your x will be equals to -4.48। दो आंसर आ रहे हैं, एक 8.18 आ रहा है, 0.818, and the other one is -4.48। ठीक है, these are the two answers। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको। आंसर्स नजर आ रहे हैं इधर नीचे? ये आंसर्स नजर आ रहे हैं? नहीं सर। चलो मैं आंसर्स ऊपर लिख देता हूँ थोड़े से, मैं आंसर्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो दो आंसर्स हमारे आ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 0.818 एंड द नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू -4.48। ठीक है, दीज आर द टू आंसर्स। ये भी ऊपर हो गया ज्यादा, अच्छा थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो दीज आर आर टू आंसर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट एफ। जल्दी से पार्ट एफ लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ बोर्ड पे, सॉल्व करते हैं साथ। सर और कितने क्वेश्चन है? अभी 4 क्वेश्चन और है ना, अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, तो 4 में से मैं 2 और करा देता हूँ, 2 फिर तुम लोग अपने होमवर्क में ट्राई कर लेना। तो एक काम ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ अब तुम लोग करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूँ, ठीक है। अगर बोलते हो तो मैं सारे सॉल्व करा देता हूँ, मुझे इशू नहीं है कोई। अगर तुम लोग खुद सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम लोग की। क्या बोलते हो? क्या सारे अभी कर लें, बोर्ड पे कर लें सारे? व्हाट डू यू से, क्या कहते हो सारे? चैट पे बताओ मुझे जल्दी से। अभी करना चाह रहे हो सारे क्वेश्चन 5 के 5 अभी क्लास में कर लें, या होमवर्क करोगे कुछ? ठीक है, मुझे बता, अभी कर लेते हैं। समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर मुझे बता दो, मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग कर रहे हैं 1b एक्सरसाइज, जी बिल्कुल यही है, D3 से कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चल भी मूव ऑन। ये 2 आंसर्स आ गए सबके, पार्ट बी कंप्लीट हो गया सबका। चलो अब पार्ट एफ पे जा रहा हूं मैं। पार्ट एफ स्टार्ट कर दो आप लोग, जिसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया मैं थोड़ा सा उसको बोर्ड पे लिख रहा हूँ।
We have part F. Part F में the question is 5x and upon this is x plus 4 and we have equals to 3x plus 1. This is our part F. ये हमारे पास part F है 5x upon x plus 4 equals to 3x plus 1. And now we have to solve it again. This is a fractional equation. Again, I have to simplify it. There is nothing, so I will write 1. And then I am going with cross multiplication. This 1 will be multiplied with 5x. And this x plus 1. This plus 4. ठीक है, जब समझ में आए थोड़ा सा यस नो बोल दोगे तो मुझे लगेगा हाँ समझ में आ रहा है। आवाज तो आ रही है ना मेरी क्लियर? स्क्रीन भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। Just 5x multiplied by 1 will be 5x. चलो ये 5x हो गया। ठीक है, अब मुझे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आई एम गोइंग विद 3x। स्प्लिट किया, पहले ब्रैकेट को स्प्लिट किया 3x एज इट इज and then x plus 4, and then again moving forward this is positive 1, x plus 4 again, ये 5x इधर ही रहा, this 3x multiplied with x will be 3x square, this 3x multiplied with plus 4 will be 12x, this will be plus x and this will be plus 4, and now I'm shifting this positive 5x को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा इट विल बिकम नेगेटिव, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर पॉजिटिव 12x, दिस इज 5x, दिस इज पॉजिटिव x माइनस x एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये स्टेप समझ में आया? मैंने इस 5x को शिफ्ट कर दिया उस साइड पे, बस ये पॉजिटिव का था वहां जाके नेगेटिव का हो गया। ठीक है, तो माय इक्वेशन विल बी 3x स्क्वायर plus 12x plus 1x will be 13x, 13 minus 5x will be plus 8x, and then this will be 4 equals to 0। ये मेरी quadratic equation बन गई। I know the value of ABC, ABC की values मुझे पता चल गई। The value of A is 3, A की value 3 आ गई। The value of B is 8 and the value of C is 4। The quadratic formula x is equals to minus B plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a। वैल्यूज पुट कर लो जल्दी से। वैल्यूज पुट कर लो जल्दी से, आंसर्स बताओ मुझे। थोड़ा सा क्लास को आज थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं 10 to 15 मिनट, ताकि वो सवाल भी सॉल्व हो जाए। बाकी के होमवर्क नहीं है, तुम लोग ये सवाल सॉल्व कर लो फिर खत्म। इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर्स, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मीनवाइल मैं तुम लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे आंसर्स बताओ जल्दी से। Anas, we have Anas Ahmed, 9F, we have Hamad Hamid,
Basif 9H, and we have Muhammad Abdullah 9F, Raza 9F, and we have Kumail 9F, Usaid 9H, and we have Yashfa. आंसर्स बताओ, आंसर्स क्या है जल्दी से, सॉल्व हुआ है किसी का? Sir, first possibility is minus 0.67. माइनस 0.67, माइनस 0.67, ठीक है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दूं इधर, जल्दी से वैल्यूज पुट कर देता हूं। माइनस बी विल बी -8, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन 8 स्क्वायर। आई एम पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली। बी हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, एंड देन देयर इज अ नेगेटिव साइन 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो 4 3 12 एंड दिस विल बी 48। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। 2 टाइम्स ए विल बी 6। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। ए की वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स 3 विल बी 6, और जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो इट विल बी -8 प्लस -16 एंड देन 6 अगेन, एंड दिस विल बी -8 प्लस -4 अपॉन 6, ठीक है। ये सॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा ये उस तरह हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब मुझे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसके बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। एक हो जाएगी x विल बी -8 प्लस 4 अपॉन 6। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, -8 प्लस 4 अपॉन 6, एंड द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी -8 माइनस 4 अपॉन 6, ठीक है। एक का आंसर मेरे पास आ जाएगा, 2 आंसर्स मैं यहाँ टॉप पे लिख दूं, यहाँ मैं टॉप पे लिख देता हूं। द फर्स्ट वन इज 0.67 माइनस 0.67, ऐसे ही है हानि, -0.67 Minus 0.67, sir. and the next one is 2 Minus minus 2 2.67. minus 2.67 और -2 सर -2 मेरा होगा तो हानि, देखो -2.67 आया है। कैसे, -8 और -4 -12 नहीं हो गए? 12 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, चेक करो, चेक करो इसको हानि। देखो -8 एंड -4 विल बी -12, -12 डिवाइडेड बाय 6 विल बी -2। चेक करने दें सर। -8। यस सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रब कर दूं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है काफी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं जो है वो तुम आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर पार्ट सी कर देता हूं मैं, तुम लोग बाकी के पार्ट्स 2 कर देना। इज दैट ओके? सर तीनों मैं कर लूंगा घर पे। तीनों नहीं, एक तो कर लो ना, एक कर लो, 2 फिर घर पे कर लेना, ऐसे ही है। बाकी भी बता दो मुझे। ओके, एक पार्ट मैं कर दूं, बाकी 2 आप कर लोगे होमवर्क में? जी उसे सर। यशवा, ठीक है, एक पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। पार्ट सी मैं सॉल्व कर देता हूं, पार्ट बी एंड डी इज योर होमवर्क। मैं पार्ट सी सॉल्व कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी।
अच्छा, in part number C we have x minus 2 and then upon 5, then plus 1 upon 2x minus 3 and equals to 1. This is our question. 1 upon 2x minus 3 equals to 1 and we have x minus 2 upon 5. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ कि एलसीएम कैसे लूँ. मैंने एलसीएम कैसे लिया है और मैं एलसीएम को सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, तो सिंस दीज टू आर फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस ऐड कैसे होते हैं, आई हैव टू टेक द एलसीएम. तो फॉर एलसीएम आई विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस एंड आई विल राइट बोथ ऑफ दीज नंबर्स. क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स वेरिएबल की फॉर्म में है तो आई विल राइट बोथ द नंबर्स. मैं दोनों नंबर्स को साथ लिख लूंगा. अब देखो मैं एलसीएम किस तरह ले रहा हूं. आई हैव 5 ओवर हियर, मेरे पास यहाँ 5 मौजूद है एंड आई हैव 5 ओवर हियर एज वेल. व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग? एक्स्ट्रा थिंग क्या है? 2x minus 3. तो आई विल मल्टीप्लाई दिस एक्स्ट्रा थिंग विद द न्यूमरेटर. एलसीएम देखो मैं इस तरह ले रहा हूं. 5 मौजूद है इधर, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 कैंसिल आउट हो गया. व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग? 2x minus 3. तो 2x minus 3 को मैंने x minus 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आई एम यूजिंग अ ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया. What about the other one? I have 2x minus 3 over here and I have 2x minus 3 over here. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. एक्स्ट्रा थिंग क्या है? What is the extra thing? 5. 5 will be multiplied with 1 and it will give me 5. ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप समझ में आ गया? दोबारा समझा दूं? Yes, sir. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. इन दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं. दिस इज x, दिस इज 2x minus 3 minus 2 and 2x minus 3 एज इट इज. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मैं जैसे दो ब्रैकेट्स की करता हूं. प्लस 5 विल बी एज इट इज एंड आई विल शिफ्ट दिस डिनोमिनेटर. इस पूरे डिनोमिनेटर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं दूसरी साइड पे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी 5 2x minus 3. ये एज इट इज वहां चला गया. अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है. x मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 2x स्क्वायर minus 3x minus 2 minus 4x and minus minus plus 2 times 3 is 6 plus 5 equals to, उसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूं. 5 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 10x and 5 मल्टीप्लाई बाय minus 3 विल बी minus 15. ये स्टेप देख लो, ये समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम मूविंग दिस ऑन दिस साइड. ये दोनों को यहां शिफ्ट कर रहा हूं. 2x स्क्वायर विल बी एज इट इज minus 3x and minus 4x will give me minus 7x. This is plus 6, this is plus 5, this will be 11. This is positive 10x. ये साइड पे आ गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 10x. This is positive 15 equals to 0. उस साइड पे जा रहा हूं. ठीक है, दिस इज 2x स्क्वायर minus 7x and minus 10x minus 17x plus 11 and plus 15 plus 26. What is the value of a? The value of a is 2, the value of b is minus 17 and the value of c is 26. सर जी बोलिए. तो 17 कैसे बना? दिस इज minus 3x minus 4x minus 7x और ये जो पॉजिटिव का 10x था, ये जब इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 10x. तो minus 7x और minus 10x will be minus 17x. ओके. अब जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. x इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं. ठीक है, आई एम यूजिंग द वैल्यूज डायरेक्टली. माइनस बी
माइनस बी मीन्स आई हैव अ माइनस और मेरा बी ऑटोमेटिकली माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी यहां 17 आ जाएगा, बस प्लस माइनस। ठीक है, ये पॉजिटिव जो 17 है वो इस वजह से आया क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला एज वेल, और मेरा बी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर, 17 स्क्वायर इज 289, and then minus 4 multiplied by a multiplied by c, so 4 multiplied by a multiplied by c will give me minus 4 times 2 is 8, and 8 multiplied by 26, 26 multiplied by 8 will be 208, 208, and then whole divided by 2a, a is 2, so 2 multiplied by 2 is 4, so it will be 2 multiplied by 2 is 4. चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। x विल बी इक्वल्स टू, मुझे जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दो। अच्छा 81 आ रहा है, ठीक है, 81 तो मुझे पता है, 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 81, ठीक है, आई विल गेट 81 एंड आई नो द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, सो दिस विल बी 17 प्लस माइनस 9 टाइम डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी माय सिंप्लीफाइड। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, x विल बी, एक बार पॉजिटिव में लिख लूंगा, x equal to, I am going with the positive sign first, 17 plus 9 upon 4, and the other one will be 17 minus 9 upon 4. जल्दी से मुझे x के दो आंसर्स बता दो। 17 plus 9 will be 26 upon 4, 26 divided by 4 will give an answer of 26 अपॉन 4 बता दो कितना आंसर आ रहा है डिवाइड करके। Sir, first possibility is 6.5 and the second is 2. वेरी गुड, 6.5 एंड द अदर वन इज 2, ठीक है, तो तुम लोग भी चेक कर लो जल्दी से, बिल्कुल सही आंसर्स हैं, गुड हानि, शाबाश। सो अब दो पार्ट तुम लोग के होमवर्क है, ठीक है, यू विल बी सॉल्विंग दैट पार्ट, उसको सॉल्व कर लेना। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी जो है जल्दी से सॉल्व करके अगर आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट तो मैं कोशिश करके उसकी भी एक वीडियो बना देता हूँ। बाकी है कि यू हैव टू ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो इसकी। दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो जल्दी से आप लोग पूछ लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जल्दी से।